गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पार्ट 4, इसका पार्ट 4 आज हम स्टडी करने जा रहे हैं और स्पेशली इसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ these two parts. One is the alimentary canal and second is some important glands. Alimentary canal is consist by mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Also the rectum and anus. Rectum and anus, these are the parts. These are also part involved in alimentary canal. And some important glands. These glands may be the salivary gland present in our buccal cavity. Number 2, the gastric gland present in our stomach. Number 3, liver and pancreas. These two glands are also involved in our digestive system. Number 4, intestinal glands. So okay, one is a salivary gland in buccal cavity. Second is gastric gland present in our stomach. Next one is liver. Next one is also आप liver को अलग नंबर दे दीजिए, liver and then the pancreas, and number 5 intestinal glands. So these are the important glands present in our involved in our digestive system. चलिए कुछ बेसिक स्टडी कर लेते हैं यहाँ पर कि जैसे माउथ के बारे में हम बात करें तो माउथ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर माउथ, इंजेशन ऑफ फूड, some mechanical and some chemical digestion takes place. Actually mouth is the just opening pore of our alimentary canal, which is covered by upper and lower lip, and mouth open inside a cavity that is called as buccal cavity, buccal cavity we can say. So mouth is only a pore which is responsible, which is used by a human being to ingest the food, where the chemical and some physical digestion takes place. Some mechanical and chemical digestion takes place inside the buccal cavity, where teeth and tongues are teeth, tongue and salivary gland. These three structure. Teeth are responsible for breakdown of food material in very small particles, where tongue is responsible for the mixing of the food material with the saliva, and salivary gland is responsible for secretion of saliva. Okay, so these are the three structure present inside the mouth, open inside the buccal cavity, where three structure, teeth, tongue and salivary glands are present. Those are responsible for mechanical and some chemical digestion. Then the esophagus, that is the food pipe we can say, which is extended from pharynx to the stomach. Okay, one more structure is present in between buccal cavity and esophagus, that is the pharynx. Okay, then the esophagus only responsible for transfer of food from esophagus, from pharynx to stomach. Okay, and stomach, this is what we can say a bag-like structure, which is responsible for temporary storage of food material, where some mechanical digestion takes place by the muscles, stomach muscles वहाँ पर होती है, जो जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है. ठीक है, लगातार मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती रहती है, जिससे फूड का मैकेनिकल डाइजेशन होता है. और साथ में केमिकल डाइजेशन, मैंने अभी भी आपको कहा था कि सलाइव यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पर होती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती है, और उसके अंदर गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं, HCl होता है, तो उससे केमिकल डाइजेशन यहाँ पर होता है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी यहाँ पर हमने लीवर और पेनक्रियास को छोड़ दिया है ना. लीवर यहाँ पर है, लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस, वेयर पेनक्रियास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेनक्रियाटिक जूस. ठीक है, तो इसके साथ स्मॉल डाइजेशन का जो अपर पार्ट है डिओडिनम में,
जो डाइजेशन होता है वो बाइल जूस और पेनक्रेटिक जूस के थ्रू होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हम आगे बात करें, डिओडिनम के बाद जेजुनम वाला पार्ट देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सम केमिकल डाइजेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो उसका इलियम वाला पार्ट होता है, जो लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट विल बी कनेक्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जब हम डायग्राम देखेंगे तो समझेंगे। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वहाँ पर स्पेशली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जो रेसिडुअल फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड मटेरियल बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। तो उस एक्सेस वाटर को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में यह रेक्टम, और रेक्टम के बाद रेक्टम जो होता है वो टेम्परेरी स्टोर करके रखता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो फीकल मटेरियल होता है उसको, और उसके बाद में एनस के थ्रू फूड को, जो रेसिडुअल फूड होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक समरी है यहाँ पर, इसको आप समझ सकते हैं। और आइए इसको आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर कुछ पार्ट को लेबल नहीं किया गया है, उनको आपको लेबल कर लीजिएगा। ये माउथ है, ठीक है। और माउथ के बाद में यहाँ पर ब्यूकल कैविटी, ये दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्यूकल कैविटी, ब्यूकल कैविटी, दिस इज माउथ, ओके, माउथ ब्यूकल कैविटी। देन उसके बाद में दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है, हालांकि माउथ बक्कल कैविटी में ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं। डायग्राम में आप ना भी एक्सप्लेन करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिर्फ बक्कल कैविटी लिख दें, लेकिन ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं, याद रखिए आप कौन कौन से। एक तो टीथ होता है, टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड होती है। ये सलाइवरी ग्लैंड जो यहाँ पर लेबल किया है, सलाइवरी ग्लैंड, इसके 3 लोब होते हैं। अभी आपको इतना तीनों लोबों के नाम आप याद रखें, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड लिखे 10th क्लास के बच्चे तो चलेगा। सलाइवरी ग्लैंड उसके 3 लोब्स होते हैं ना, प्रॉक्सिमल, पैरोटिड और सबलिंगुलर। तो यहाँ पर आप उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सलाइवरी ग्लैंड सिर्फ लिखिए। सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, है ना। ब्यूकल कैविटी में टिथ होता है, टंग होता है और ब्यूकल कैविटी होता है। आप चाहे तो लेबल करें, ना भी करें, सिर्फ बक्कल कैविटी लेबल करेंगे चलेगा। देन ईसोफेगस फूड पाइप विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस फेरिंग्स टू द स्टमक, ये यहाँ पर स्टमक है, ठीक है। स्टमक फिर इसके बाद में इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाता है। इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है। पहला पार्ट डिओडिनम, दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं जेजुनम, और तीसरे पार्ट को हम बोलते हैं इलियम, ठीक है। डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। डिओडिनम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है इसका। जेजुनम जो होता है वो इसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है। और इलियम इसका सबसे लास्ट वाला पार्ट है, जो कि फाइनली यहाँ जाकर ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी बोलते हैं, कोलोन, ठीक है। तो कोलोन के भी अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के भी अब 3 पार्ट समझ सकते हैं। ये पार्ट जो ऊपर फूड मटेरियल को, रेसिडुअल फूड को ऊपर लेके जाएगा, इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। क्या बोलेंगे? असेंडिंग कोलोन। उसके बाद में ये वाला पार्ट जो फूड को ट्रांसवर्सली लेके जाएगा, रेसिडुअल फूड को, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। ये हो गया असेंडिंग कोलोन, और ये हो गया ट्रांसवर्स कोलन। ये जो नीचे वापस फूड, रेसिडुअल फूड को नीचे की तरफ लेके आएगा, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। फिर थोड़ा सा ये पार्ट जो एस शेप बनता है, इसको हम बोलते हैं सिग्माइड कोलन, ठीक है। कोलन क्या, लार्ज इंटेस्टाइन को ही हम कोलन बोलते हैं ना, ठीक है। कोलीफॉर्म बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं यहाँ पर, स्पेशली इसको कोलन नाम दिया है, ठीक है। और कौन कौन सा पार्ट हो गया? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्माइड कोलन, और इसके बाद में फिर ये रेक्टम और इसके बाद में ये एनस। तो इस तरीके से आप इसको लेबल कर लीजिए। यहाँ पर ये एक पार्ट हमारा छूट गया, अपेंडिक्स, जहाँ पर ये दिस इज द पर्टिकुलर पार्ट वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। यहाँ पर एक पोर होता है, दैट इज कॉल्ड इलियोसिकल पोर, इलियोसिकम। ये सीकम स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, जो सबसे नीचे वाला, जो असेंडिंग कोलन के भी नीचे वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं सीकम बोलते हैं, ठीक है। तो सीकम और इलियम, ये इलियम किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट इलियम, और यहाँ पर सीकम लार्ज इंटेस्टाइन। तो दोनों का के बीच में जो पोर होता है उसको इलियोसिकल पोर के नाम से जानते हैं, और उसके नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स।
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें सेलुलोज के डाइजेशन से रिलेटेड था, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम हम सेलुलोज यानी कि कच्चा सेलुलोज नहीं खाते हैं, इसलिए अब इस ऑर्गन का कोई फंक्शन नहीं रह गया है। So that this organ is present in our digestive system, but there is no function played by this organ, so that we can say this organ is a vestigial organ in our body. So आप इसकी प्रैक्टिस करें, डायग्राम की प्रैक्टिस करें। Many a time this question was asked by CBSE, draw a well level diagram of human digestive system। तो आप इसको ड्रॉ करें और आगे इसके आगे और हम इसके स्टडी करते हैं जो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस और उनमें किस तरीके का डाइजेशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है या एसिमिलेशन होता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, आइए तो एक बार फिर इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। माउथ बक्कल कैविटी यहाँ पर लेबल करिएगा। देन सलाइवरी ग्लैंड इज आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द बक्कल कैविटी। जिसके बाद में एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक वॉल्व है स्पेशली, जैसे आप देखिए यहाँ पर मान लिया जाए कि ये माउथ है और माउथ से ये यहाँ पर बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी। ठीक है, ये माउथ हो गया बक्कल कैविटी, और यहाँ से ये दो पाइप निकले हुए हैं। दीज आर द टू पाइप्स। ठीक है, एक तो है विंड पाइप, क्या है, एक है विंड पाइप और दूसरा है फुट पाइप। तो विंड पाइप और फुट पाइप दोनों ही एक साथ कनेक्टेड है। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये विंड पाइप है और ये फुट पाइप, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब ये जो पर्टिकुलर वाल्व है, दिस वाल्व इज कॉल्ड एज एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस वाल्व है। ठीक है, तो यहाँ ये एपिग्लोटिस वाल्व जो होता है ये क्या करता है कि जब आप फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान क्या करता है कि दिस एपिग्लोटिस वाल्व विल क्लोज द फूड पाइप को क्लोज कर देता है ताकि कोई भी फूड पार्टिकल फूड पाइप में इंटर ना हो जाए। लेकिन जब आप सांस ले रहे होते हैं, जब आप ब्रीथिंग कर रहे होते हो, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर रहे होते हैं, उस दौरान क्या करता है ये एपिग्लोटिस जो होता है ये रिवर्स साइड में फूड पाइप को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो दिस इज एपिग्लोटिस इज अ वाल्व विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन, वी कैन से विच प्रेजेंट इन बिटवीन फूड पाइप एंड विंड पाइप। और जब उनको रेस्पेक्टिव जो फंक्शन होता है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन चल रहा होता है तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे जब भी आप खाना अंदर इनगल्फ करते हैं, अंदर लेते हैं खाना, उस दौरान क्या होता है कि 1 सेकंड के लिए आपकी सांस रुक जाती है। वो क्यों रुकती है? क्योंकि ये एपिग्लोटिस वाल्व होता है, ये फूड पाइप को बंद कर देता है। या जब आप पानी का घूंट उतारते हैं तो उस दौरान भी आपकी सांस थोड़ी समय के लिए रुक जाती है। तो उस दौरान क्या करता है कि एपिग्लोटिस वाल्व जो होता है वो फूड पाइप को बंद कर देता है, कहीं फूड पार्टिकल या वाटर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना चला जाए। ठीक है, उसी तरीके से जब आप खाना खा रहे होते हैं तो ये जब आप सांस ले रहे होते हैं, जब आप ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, तो ये आपके फूड पाइप को ब्लॉक करके रखता है। ठीक है, तो एपिग्लोटिस वाल्व के बारे में ये जानकारी आप रखें। इसके अलावा जैसे एपिग्लोटिस वाल्व हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करें यहाँ पर अगला जो हमारा है ये फेरिंग्स। यहाँ पर इन्होंने एपिग्लोटिस वाल्व जो है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर वेयर प्रेजेंट फेरिंग्स की जगह पर ही होता है। ये 2 सेंटीमीटर स्ट्रक्चर होता है फेरिंग्स, जहाँ पर ये हमारा जो फुट पाइप और विंड पाइप दोनों जुड़ते हैं, और उसी जगह पर ये वाल्व होता है कार्टिलेजिनस वाल्व एपिग्लोटिस, जो दोनों ही पाथवे को समय समय पर ब्लॉक और ओपन करता है एज पर रिक्वायरमेंट वी कैन से। ईसोफेगस जो कि फूड पाइप बारे में हमने डिस्कस कर लिया, स्टोमक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। पार्शियल यहाँ पर डाइजेशन होता है, जब हम फंक्शन में हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद में आप लेवल करें पेनक्रियास को, और पेनक्रियास के सामने लीवर को। ये लीवर और पेनक्रियास दोनों ही एक डक्ट, कॉमन डक्ट के थ्रू एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, इसका भी ध्यान रखिए। तो लीवर का बेसिक फंक्शन बाइल जूस का सिक्रेशन, पेनक्रियास का बेसिक फंक्शन जो होता है वो पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पर जो हम फर्दर बात करेंगे तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है कि फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस यहाँ पर हो जाएगा, फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। लार्ज इंटेस्टाइन हमने बात कर ली यहाँ पर, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्माइड कोलॉन के बारे में।
तो बेसिक यहाँ पर इनका जो फंक्शन होता है, जो रेसिडुअल फूड के साथ जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन करता है। रेक्टम जो होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है, और एनस जो होता है यहाँ से इजेशन की प्रोसेस होती है। जैसे माउथ से इंजेशन की प्रोसेस होती है, एनस से इजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि फीकल मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसको हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। ओके, धन्यवाद।